بلیٹن کا کرتے ہیں آغاز۔ فوج کو کوئی بھی غیر آئینی قدم اٹھانے سے روکیں گے۔ ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف کیس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ کہا فوج سرحدوں کی محافظ ہے، نہیں چاہتے اپنے شہریوں پر بندوق اٹھائے۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بہت سنجیدہ ہے، ملک اور یہ عدالت نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار 9 مئی جیسا واقعہ ہوا، فوجی جوان کو حملے کے جواب میں گولی چلانا آتی ہے۔ اعتزاز احسن نے کہا اگر ایسا تھا تو گولی کیوں نہیں چلائی؟ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ نے عدالت کو چھٹیوں پر جانے سے قبل فیصلہ کرنے کی استدعا کی۔ چیف جسٹس نے کہا میرے ساتھی جج کو اہم ذمہ داری نبھانی ہے، 2 ہفتوں تک تو بینچ کا ارکان دستیاب نہیں، جیسے ہی جج دستیاب ہوں گے کیس سنیں گے۔ معروف ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز احسن نے سپریم کورٹ سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم پر از خود نوٹس لینے کی استدعا کر دی۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی تو اعتزاز احسن نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں حالیہ ترامیم عدالت میں پیش کی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا آفیشل سیکرٹ ایکٹ بل ہے یا قانون؟ آبزرویشن دی کہ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے کہ اکیلا چیف جسٹس از خود نوٹس نہیں لے سکتا۔ اس بل کے بارے میں زیادہ علم نہیں، صرف اخبارات میں پڑھا ہے۔ خوش قسمتی سے بل ابھی بھی ایک ایوان میں زیر بحث ہے۔ دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کا دوسرا ایوان اس قانون پر کیا رائے دیتا ہے۔ اعتزاز احسن نے عدالت کو بتایا کہ اس قانون سے تو لامحدود اختیارات سونپ دیے گئے ہیں، اختیار دیا جا رہا ہے کہ بغیر وارنٹ کسی کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ ادارے بغیر وارنٹ کسی بھی وقت کسی کی بھی تلاشی لے سکیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہونے کے تانے دیے جاتے ہیں۔ وزیراعظم کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، بولے کہا جاتا تھا شہباز شریف پرویز مشرف کے بہت قریب ہے، کیا انہوں نے مجھے لڈو پیڑے دیے؟ بلکہ نواز شریف کے ساتھ جیل میں ڈال دیا۔ کبھی ذاتی مفاد کے لیے سپہ سالاروں سے ملاقاتیں نہیں کی، میرا مشن صرف ملک کو آگے لے جانا تھا۔ جو لوگ مجھے تانا دیتے رہیں گے یہ تو جناب یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، مجھے ان چیزوں سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ 38 سال مجھے ہو گئے ہیں، اس دوران بہت اپنے سپہ سالاروں سے میری ملاقاتیں رہی، پر ایک ہی مقصد ہوتا تھا یہ ملک ترقی کرے۔ اسلام آباد کی حکومت اور راول پنڈی کی اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے ادارے مل کر پاکستان کو باہر لے کے جائیں، جس کے لیے حضرت قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا۔ جن مشرف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شہباز شریف بہت اس کے قریب تھا، کیا مجھے ان کو لڈو پیڑے اور مٹھائی مل گئی؟ نواز شریف بھی جیل میں گئے، میں بھی جیل میں گیا۔ ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ ہم سے اب بہت آگے چلا گیا، لیکن گھبرانے کی اور رونے دھونے کی کوئی بات نہیں۔ یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہم نے تقدیر بدلنی ہے تو کوئی مشکل نہیں رہے گی، ملک بنتا ہے، بالکل ترقی ہوتی ہے۔ بے حد شکر گزار ہوں جنرل عاصم منیر کا، جنہوں نے بڑی کمٹمنٹ دکھائی ہے۔ اگر وہ مکمل طور پر اس کو فوکس نہ کرتے اور پوری طرح اس کا پیچھا نہ کرتے، سپورٹ نہ کرتے تو یہ کام مکمل نہیں ہونا تھا۔ مشترکہ مفادات کونسل میں مردم شماری کے خلاف ووٹ دینے کا فیصلہ نہیں کیا، سندھ کے تحفظات دور کر دیے تو مردم شماری کے حق میں ووٹ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا 2 ٹوک موقف، کہا نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات سی سی آئی کی منظوری پر منحصر ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا تفصیلی انٹرویو دیکھیے آج رات 11:03 پر صرف ARY نیوز پر۔ Now it's too late. اب پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کے نمبرز کے تحت؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ اب وہ دیکھیں اگلا الیکشن ہوگا جو بھی سی سی آئی اپروو کرے گی، تو سی سی آئی میں آپ کا ووٹ بڑا اگر امپورٹنٹ ہے۔ میرا ووٹ آئے گا میں جب سامنے دیکھوں، ابھی میرے پاس نمبرز نہیں ہے، میرے پاس ورکنگ پیپر نہیں ہے۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سی سی آئی میں آپ اس کو اپوز کریں گے؟ نہیں، میں نے فیصلہ کیا۔ I will not be in a position to support the census۔ اگر ہمارے کنسرنز، اور یہ ابھی کی بات نہیں، یہ 4 مہینے پرانی بات ہے، ایڈریس ہو گیا اگر یہ میں نے 4-5 مہینے پہلے بفور اینی بڈی ایلس میں نے یہ کنسرنز ریز کی۔ اور رضوانہ پر تشدد کرنے والا مجرم جتنا بھی طاقتور ہو سخت سزا دی جائے، مریم نواز کا صوبائی اور وفاقی حکومت سے مطالبہ۔ مریم نواز نے اسپتال میں تشدد کا شکار کم سن گھریلو ملازمہ رضوانہ کی عیادت کی۔ بچی نے بتایا مالکن ڈنڈوں سے مارتی تھی، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مریم نواز نے کہا سزا ملے گی، ملنی چاہیے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اب ٹھیک ہو اور ٹھیک ہو جاؤ گی، بہت سزا ملے گی اور ملنی چاہیے انشاءاللہ۔ اتنا بڑا ظلم کیا ان کو ملے گی سزا، لیکن آپ نے اب گھبرانا نہیں ہے۔ تو آپ نے کبھی کسی کو بتایا نہیں؟ کیوں؟ امی ابو کو بھی نہیں بتایا؟ ایسی بات تو کبھی نہیں چھپانی چاہیے، فوراً بتانا چاہیے۔ آج میرا مقصد
इस जुल्म को हाईलाइट करना था। मुजरिम चाहे जितना बड़ा भी ताकतवर हो, जज हो, कोई भी हो, उसको कानून के शिकंजे में लाना, उसको सजा देना इस वक्त की अहम तरीन। जज के घर में कमसिन रिजवाना पर तशद्दुद के खिलाफ सिविल सोसाइटी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मरासा लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि एक कमसिन बच्ची को मुलाजमत पर रखकर मुल्की कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी की गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामले का नोटिस लें और कार्रवाई करें। हुकूमत पाकिस्तान का कौमी टीम की सिक्योरिटी का मामला ICC के सामने उठाने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि कौमी क्रिकेट टीम की भारत में सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ICC सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराएगी तो टीम भारत जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामले को ICC के साथ उठाएगा। ज़का अशरफ हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात से ICC को आगाह करेंगे। कराची में एम्प्रेस मार्केट के सामने ठेला माफिया की गुंडागर्दी। ठेले हटाने की कोशिश पर ट्रैफिक एहलकार को धमकियां दी। ठेला माफिया के कारिंदे ने कहा, तंग ना करो वरना बड़े लोगों के पास जाएंगे। ट्रैफिक एहलकार नवाज सियाल अपनी और ठेले वालों की तकरार की वीडियो भी बनाता रहा। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि SO नवाज सियाल को इस वाक़े से कुछ रोज पहले मुअत्तल किया गया था। नवाज सियाल ने बॉडी कैम से रिकॉर्डिंग की। आप इसको हटाएं यहाँ से। आप मैं आपसे कह रहा हूँ इनको हटाएं यहाँ से। ये फोन बंद करें और इसको हटाएं यहाँ से। मैं आपसे कह रहा हूँ दादागिरी छोड़ दो और इसको हटा लो। मैं कोई आपका भाई नहीं हूँ, मैं कोई भाई नहीं हूँ आपका। हटाएं इसको यहाँ से। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको हटा लो यहाँ से। अपना नौकरी का भी ख्याल रखो, साफ बात। क्यों नहीं करो कि हम बड़ों लोगों के पास जाए। आप जिसके पास मर्जी है जाएं। आप मुझे नौकरी से निकलवा दो। आप कह रहे हो ना अपनी नौकरी का ख्याल करो। मैं आपको ठेले यहाँ नहीं लगाने दूंगा। क्यों फुटपाथ को घेर रहे हैं? क्यों आप मार्केट के बाहर लगा रहे हैं? आप बच्चे हो गए पीछे। मैं बच्चे पीछे क्या मतलब है? आप मुझे मार दोगे? मेरे बच्चे पीछे पीछे को गलत सेट नहीं दो आप। आपने मुझे क्यों कहा कि आपके बच्चे पीछे? मैं आपको कह रहा हूँ आप साथ रखो। अल्लाह ताला आपको ऐसा अज़ाब में मुब्तला कर दे कि फिर आप इधर आ नहीं सकते। चलो ठीक। आपको मैं यहाँ ठेले पथारे नहीं लगाने दूंगा। आपकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद है। सलमान, सबसे पहले तो ये बताइए, ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने ये कहा कि इनको कुछ अरसे कबल मुअत्तल किया हुआ था, तो उसके बावजूद उन्होंने ये काम किया। मुअत्तल क्यों किया गया था और मुअत्तली में उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया? देखें, ये एम्प्रेस मार्केट जो तारीखी विरसा मेरे अकब में मौजूद है, इसके साथ ही ठेले और यहाँ पे लगाए जाते हैं। ये वीडियो सामने आई जिसमें एक तकरार देखी जा सकती है। हमने ये वीडियो सामने आने के बाद जो ट्रैफिक पुलिस के आला हुकाम है उनसे रब्ता किया। हमने पूछा ये मामला हुआ क्या था, तो एक इंकशाफ ये हुआ कि SO अनवर सियाल जो पीडी थाने का SO था, इसको चंद रोज़ पहले ही मुअत्तल कर दिया गया था। और इसकी मुअत्तल करने की वजह ये बनी थी, सदर एम्प्रेस मार्केट के एतराफ़ में जो गैर कानूनी बस के पार्किंग स्टैंड बने हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने पर एक और अहकाम दिए गए थे कि जो बसों में सैनिटाइजर लगाए जाते हैं उसके खिलाफ कार्रवाइयां करने के अहकाम दिए गए थे। वो कार्रवाइयां ना करने पर इनको हटाया गया। अच्छा। अब हटाने के बाद एक और बात अहम है कि ये बॉडी कैम जो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को दिए जाते हैं वो ठेले हटाने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सबसे अहम बात यह ट्रैफिक पुलिस कहते हैं कि ठेले हटाना, फतारे हटाना बल्दिया उज़्मा इदारों की जिम्मेदारी होती है। इनके जो इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट बने हुए होते हैं वो ये कार्रवाइयां करते हैं और पुलिस और ट्रैफिक पुलिस उनके साथ मुआवनत के लिए मौजूद रहती है, ताकि अगर कोई नाखुशगवार वाकया ट्रैफिक जैम हो तो उनकी सूरत हाल हो तो वो उसको कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल ठीक है सलमान जी, जैसे आपने कहा कि एंटी इंक्रोचमेंट वालों का काम है, तो ये तो बिल्कुल आपने बात सही की है। लेकिन जो सच बात है वो ये है कि ये एक जो है वो हेरिटेज है और इस हेरिटेज को पहले तो साफ़ किया गया साल पहले, उसके बाद भी इसके सामने इस तरह ठेले लगाना, पथारे लगाना। सलमान, इस तरह के वाक़यात हम देख चुके हैं पहले भी। यहाँ से ठेले वालों को हटाते हैं, फिर वो पीछे वाली गली में चले जाते हैं, वहाँ से हटाते हैं, फिर वहाँ से भाग के वापस यहाँ आ जाते हैं। तो फिर चाहे पुलिस अफसर हो या एंटी इंक्रोचमेंट सेल हो, ये धमकी किसकी दे रहा था? जो कि पुलिस वाले से भी ऊपर की धमकी दे रहा था कि मैं उसको बोलूँगा कि जो तुम्हारे से भी ऊपर है। जी बिल्कुल, ये भी एक माफिया की सूरत में काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे एतराफ़ में, ये एम्प्रेस मार्केट के एतराफ़ में अभी आपको ये फतारे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अंधेरा होते ही यहाँ तक रात के औकात में बिल्कुल रोड तक ये ठेले और फतारे आ जाएंगे। अगर मैं आपको वो जगह दिखाऊं जहाँ पर ये ठेले और फतारे लगाए गए हैं, मेरे कैमरामैन मुस्तफ़ा आपको दिखाएंगे, अब भी वो ठेले और फतारे उसी मुकाम पर मौजूद हैं जिसको हटाने की कोशिश की जा रही थी। माफिया की सूरत में काम कर रहा है ये ग्रुप। बाकायदा तौर पर रिश्वत दी जाती है, ना सिर्फ ज़िले इंतज़ामिया को, बल्दिया उज़्मा के इदारों
ठेलों को लिफ्ट भत्ते दिए जाते हैं, बल्कि इन भत्तों में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का भी हिस्सा होता है, जिसकी वजह से ये धमकियां दे रहे हैं। कई बार कार्रवाइयां होती हैं जिसके बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज होता है। कार्रवाइयों के अगले रोज हम देखते हैं कि किसी भी मुकाम पर जहां से ये ठेले या भत्तारे हटाए जाते हैं उसी मुकाम पर मौजूद होते हैं। सदर की कोई भी इशारा अब देख लें जहां पर कार्रवाइयां करके ठेले हटाए गए हों, आज भी ठेले उसी तरह मौजूद हैं और जो जवाब बनाया जाता है, ट्रैफिक जैम होता है, वो अब भी सदर की मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम मामूल की सूरत-ए-हाल बना हुआ है। ठीक है सलमान लोधी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो कराची में लगता यह है कि हर कोई एक माफिया है और अब ये ताज़ा तरीन माफिया सामने आया, ठेला माफिया, जो इस वक्त खड़ा हुआ है और उसको कई मरतबा यहाँ से एम्प्रेस के सामने हटाया जाता है और हटाने जाने के बाद ये बार बार आता है और इस तमाम तर मामलात को जो है हम देख रहे हैं। अच्छा, अगर सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद है, सलमान हमें बताइएगा कि ये जो एसओ नवाज सयाल हैं इनको कल हटाया गया है, हालांकि ये वाकया जो है ये तो परसों का है, यानी कि जिस वक्त ये वाकया रोनुमा हो रहा था उस वक्त ये मुअत्तल नहीं, हमारे पास लेटर भी सामने आ गया है। आई गेस ये अपनी जुरिस्डिक्शन में थे ये काम करने की। देखिए, ट्रैफिक पुलिस के जो आला अफसर हैं जिनके मातहत एसओ और तमाम डीएसपीज आते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनको पहले ही वार्निंग भी दी गई थी और इनको हटाया गया है। लेटर हो सकता है, अब उनसे इसी बारे में बात किया जाएगा कि लेटर या तो बाद में जारी किया गया हो, लेकिन सबसे अहम बात वो ये कह रहे हैं। सलमान आप हमारे साथ रहिएगा, नजीर शाह हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। नजीर, पुलिस हुक्काम का ये कहना और उसके बाद इस लेटर का आना, दोनों में तजाद है। बिल्कुल, देखिए ये सेक्शन ऑफिसर एम्प्रेस मार्केट नवाज सयाल है जिनकी ये वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद जिस दिन का ये वाकया उसी रात को नवाज सयाल को मुअत्तल कर दिया गया था। ये लेटर 2 अगस्त का है, यानी कि गुज़श्ता रोज का है और गुज़श्ता रोज ही ये तमाम मामला आया था। इस लेटर में ये भी लिखा हुआ है कि ये फौरी तौर पर हेडक्वार्टर गार्डन रिपोर्ट करें और इनको जो मोटरसाइकिल दी गई है, जो इनके पास हथियार है और जो भी इनके पास आर्टिकल है, ये फौरी तौर पर डिपॉजिट करवाएं और डेली ये रोल कॉल अटेंड करें। ये एक सजा होती है, कोई भी पुलिस एहलकार हो या ट्रैफिक पुलिस का एहलकार हो, उसके लिए रोल कॉल और बाकायदा उसके हेडक्वार्टर रिपोर्ट करना ये बड़ी सजा होती है। और इसका कसूर यही बताया जा रहा है कि जो वीडियो 4-4.5 मिनट की वायरल हुई थी, जिसके अंदर देखा गया था, जिसके अंदर आखिर में ठेले वाला बाकायदा कह रहा है कि मैं तुम्हारी नौकरी भी जाऊंगा और हमारे बड़े लोगों से ताल्लुकात है। तो नजीर, ये इस खत के सामने आने के बाद ये कहा जा सकता है कि पुलिस हुक्काम ही जो है वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। देखें, ये तो लेटर बिल्कुल सामने खुला सबूत है, 2 अगस्त का ये लेटर है और अगर ट्रैफिक पुलिस हुकाम कह रहे हैं कि ये इसको पहले हटाया गया था, तो फिर ये लेटर जो डीआईजी का साइन किया वो लेटर ये सामने आ चुका है, जिसमें बाकायदा इसके नवाज सयाल के बारे में लिखा हुआ है कि ये एसओ एम्प्रेस मार्केट है और इसको मुअत्तल किया जा रहा है और उसके बाद ये तमाम मामलात लिखे हुए हैं और 2 अगस्त की इसके ऊपर तारीख है। और इसके बाद गुज़श्ता रोज सबसे पहले जब किसी भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार को, सेक्शन ऑफिसर को या किसी भी दूसरे को हटाया जाता है तो उसकी पहले एक एंट्री चलती है, वायरलेस एंट्री। तो इसको पहले वायरलेस एंट्री पर हटा दिया गया था, लेकिन जब ये खबर नशर हुई तो उसके बाद बाकायदा अब इसको ये लेटर निकालकर मुअत्तल भी कर दिया गया। तो ये लेटर भी सामने आ चुका है, वजूहात भी सामने आ चुकी हैं और ये बात साबित हो चुकी है कि पथारा माफिया कितना ताकतवर है कि वो किसी भी एहलकार नहीं बल्कि किसी अफसर को भी हटाने की अहलियत रखता है। नजीर शाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ये खत ये 2 अगस्त 2023 का और ये वाकया पेश आया कल। ठेले वाले, पथारे वाले वहां से हटाने के लिए तैयार नहीं और पुलिस अपने लोगों को बैक करने के लिए तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। न सर पर छत, क्लासरूम्स, न चारदीवारी। बालाकोट के गांव घनूल की नन्ही तालिबात खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल थावा की इमारत 2005 के जल्जले में तबाह हुई थी। असातिज़ा के बैठने के लिए कोई इंतजाम है न तालिबात के लिए क्लासरूम्स मौजूद हैं। बच्चे स्कूल के मलबे पर बैठने पर मजबूर हैं। मुतालिका हुकाम को बार बार याद दहानी कराने के बावजूद 18 साल से स्कूल की तामीर के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा सका। बच्चियों के वालिदैन ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर स्कूल की तामीर नौ की जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।